आप दोनों सेम बैच में हो? ट्यूटोरियल क्लास में आओगे दोनों? ठीक है। कौन सा बैच है? B15 14। We will start in a bit. Offline students जितने भी हैं who have enrolled offline, please come in class because otherwise I'll not mark your attendance from next week onwards. ठीक है? So offline students should come to the class in offline mode. Okay, I think we can start with today's lecture. So, we have discussed logics. We have started module 5 last week, and we have discussed two things. Uh, we have discussed various propositions, connectives. I will share my screen. Okay, so this all is covered in the last class. Propositions, connectives, truth tables, etc. This is covered. Now we will start with lecture. This all was covered. I hope you have solved these questions at home. If you face any issue, you can ask me in any question or in any tude question. So let's start with today's topic. Applications of propositional logic and propositional equivalences. Okay, so first of all, applications. First of all, we'll see translating English to propositional logic. Uh, Steps to convert an English sentence to a statement in propositional logic. How to convert an English statement into propositional logic? Identify atomic propositions and represent using propositional variables. Determine appropriate logical connectives. For example, first of all, you are given an English sentence and you want to convert it into logic. Okay. So what you will do? You will break your sentence into smaller parts. So first is if I go to Harry's or to the country, I will not go to the shopping. So small three sentences. It is a mix of three sentences. First is if I go to Harry. So I go to Harry. Second sentence is I or to the country. That is if I go to the country, right? And third is I will not go to the shopping. That means I will go shopping. So I will make it a true R and I will not go to shopping is not R. Okay. So P is if I go to Harry, Q is I go to country, and R is I will go to shopping. Now, if P or Q, so it says if I go to Harry or so if I go to Harry or to the country. So I go to Harry or to the country, and if and then. If then is this. This statement implies operator is if then, right? So if this, then what? Then this. This is not R. So I will not go to shopping. So not R is I will not go to shopping. So you are just converting English sentence into a proposition logic. Okay. Example, you can access you have to translate the following sentence into proposition logic. So example is you can access the internet from campus only if you are a computer science major or you are a freshman. So you can access the internet from campus. So this is first statement. Second statement is only if. So if and only if operator. So which is this? Only if operator is this. So implies operator. Then what? Then you are a computer science major or. So you are a computer science major. Statement is C. Or you are not a freshman. So not F. ठीक है बीच में you have or operator. So you are just converting all the sentences to logic to make it simpler, to make it understandable by a computer. ठीक है. Second is system specifications. So software engineers take requirements in English and express this in precise specification language based on logic. For example, express the following proposition logic. The automated reply
cannot be sent when the file system is full. So it says that automatic reply cannot be sent when the file system is full. So only possible solution, let P denote the automated reply cannot be sent and Q denote the file system is full. So Q implies not P, right? So if the file system is full, then automated reply cannot be sent. You can see the sequence is opposite, but statement means the second part is if and first part is then. Okay? So if the file system is full, you cannot, automated reply cannot be sent. So not P. Okay? Q implies not P. Okay, so consistency. So list of proposition is called consistent if it is possible to assign truth values to the proposition variable so that each proposition is true. Example, are these specifications consistent? You have to tell that these three specifications, these three statement are consistent or not. Okay, so how you will do that? So first of all, you will build proposition logic for each of the three sentence. So for first sentence, P or Q. Diagnostic message is stored in the buffer. This is P. Let P is equals to this. Q is, it is retransmitted. So message is retransmitted. This is Q. Let P and let Q. So P or Q is diagnostic message stored in the buffer or it is retransmitted. So you have P or Q. Second is diagnostic message is not stored in the buffer. So not P. Then third is if diagnostic message is stored. If then. So if then is P implies Q. Now you have to tell me in which condition these three are true. If P, for what value of P and for what value of Q, these three would be true. Okay, so for if you can find some values of P and some values of Q where these three statements are true, then it is called consistent. Okay. For example, suppose P was true. Suppose if P was true, so second statement would be false. So this is not true. Okay, so hence not consistent. So P cannot be ट्रू P के नॉट बी ट्रू है ना क्यों क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा अगर P को हम ट्रू करेंगे तो वैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा राइट अच्छा अब देखते हैं तो हमें P को तो फॉल्स लेना ही पड़ेगा ठीक है अब अगर हमने P को फॉल्स लिया और Q को भी फॉल्स ले लिया तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा है ना तो वो भी नहीं चल सकता तो हम लेंगे P को फॉल्स और Q को ट्रू बस लास्ट ऑप्शन यही बचा तो अब इसमें देख लो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा सेकंड वाला भी ट्रू हो जाएगा और थर्ड वाला भी ट्रू हो जाएगा कि नहीं P इम्प्लाइज Q में फॉल्स कब होता है ऑनलाइन स्टूडेंट बताएंगे P इम्प्लाइज Q में फॉल्स कब होता है or should I call out name हम जब P ट्रू हो और Q फॉल्स बिल्कुल तो जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा अदरवाइज इट इज ट्रू ठीक है और हमने क्या सेलेक्ट किया हमने सेलेक्ट किया P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू हो गए तीनों स्टेटमेंट ट्रू सो जिस कंडीशन पे ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट ठीक है कंसिस्टेंसी सो इज दिस कंसिस्टेंट ये तीनों कंसिस्टेंट हैं क्योंकि किसी एक वैल्यू ऑफ P पे और किसी एक Q पे इट इज ट्रू ऑल थ्री आर ट्रू ठीक है ओके सो लॉजिक पजल सो एक पजल दिया है आपको एग्जाम में और भी पजल्स आ सकते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ क्वेश्चन इज an island has two kinds of inhabitants first is knight and second is knave first is I hope my pen is visible first is knight second is knave so two types of inhabitants are there knight always speak the truth एंड नेव ऑलवेज स्पीक फॉल्स ये हमेशा फॉल्स रहेगा और ये हमेशा ट्रू रहेगा ठीक है ये हमेशा ट्रू बोलेगा
कोई भी अगर नाइट है तो वो ट्रू बोलेगा, कोई भी नेव है तो वो फॉल्स बोलेगा, ठीक है। नाउ अब आप उस आइलैंड पे जाते हो और कोई दो पर्सन है ए और बी, उनसे मिलते हो, तो अब बताना है कि ए नाइव है कि नाइट है कि नेव है, दोनों में से कौन सा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए इज अ नाइट और नेव एंड बी इज अ नाइट और अ नेव, ये बताना है। अब कैसे बताओगे? तो ए ने आपको बोला कि ए ने आपको एक सेंटेंस बोला, ए सेज बी इज अ नाइट। अब आपको पता लगाना है ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह बी ने आपको बोला कि द टू ऑफ अस आर ऑपोजिट, हम दोनों ऑपोजिट हैं। इसका मतलब अगर वो नाइट है तो मैं नेव हूं, अगर मैं नेव हूं तो वो नाइट है, ठीक है। दो स्टेटमेंट आपको पता है। अब आपको पता लगाना है इन दोनों से कि अब ए नाइट है कि नेव है और बी नाइट है कि नेव है, ये आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले देखते हैं, लेट पी एंड क्यू बी स्टेटमेंट। पी एक स्टेटमेंट मान लिया हमने कि ए इज अ नाइट, और बी हमने मान लिया बी इज अ नाइट। ए इज अ नाइट और ये हमारा पी हो गया, और हमने बी इज अ नाइट मान लिया, क्यू हो गया, ठीक है। तो अब नॉट पी क्या बताएगा? कि नॉट पी बताएगा कि ए इज नॉट अ नाइट, दैट इज ए इज अ नेव, और नॉट क्यू बताएगा कि बी इज अ नेव, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम, क्लियर। ओके, क्वेश्चन समझ आया ना बाकी सबको भी? यस मैम। ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इफ ए इज अ नाइट, अगर ये फर्स्ट नाइट होगा, अगर फर्स्ट ए जो है ये नाइट होगा तो ये सच बोल रहा होगा, तो ये सच बोल रहा होगा कि बी इज ए नाइट, है ना। लेकिन बी क्या कह रहा है कि हम दोनों ऑपोजिट हैं, तो दोनों ऑपोजिट तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ए जो है नाइट नहीं है। समझ आया कैसे? ए इधर अगर नाइट होता तो पी ट्रू होता, है ना। ए अगर नाइट होता तो बी भी नाइट होता, क्योंकि ए कह रहा है कि बी इज नाइट, तो ए सच बोलता है, तो वो कह रहा है कि बी भी नाइट है, ठीक है। तो बी नाइट और बी कह रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि बी नाइट है, तो बी भी सच बोल रहा है। अब बी सच क्या बोल रहा है कि हम दोनों तो ऑपोजिट हैं, तो दोनों सच कैसे हो सकते हैं? ठीक है, बी कह रहा है कि मैं नाइट हूं और हम जो भी हैं वो ऑपोजिट हैं, तो ए ने सच बोला कि बी नाइट है और बी ने बोला कि वो नेव है, ठीक है। लेकिन हमने ए क्या अज्यूम किया था कि वो नाइट है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या है? नाइट नहीं है, ए नेव है, ए झूठ बोल रहा है ना। तो ए झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ए इज अ नेव, ये तो पता लग गया अब हमें, ठीक है। अब ए झूठ बोल रहा है, इसका मतलब बी इज नॉट अ नाइट, इसका मतलब बी भी नेव है, इसका मतलब बी भी झूठ बोल रहा है कि हम दोनों ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब वो दोनों सेम है, इसका मतलब वो दोनों क्या है? नेव, है ना। समझ में आया क्वेश्चन यस मैम। और इसका सोल्यूशन? ठीक है, एक बार खुद से करना, पजल है और इसके बाद और भी पजल्स इस तरह के सॉल्व करना, ठीक है। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस समरी अब तीन तरह के हो सकते हैं। टोटोलॉजी उसको बोलते हैं जिसमें सारे अगर ट्रू आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल पी और नॉट पी, पी और नॉट पी का ट्रूथ टेबल बनाओगे तो हमेशा ट्रू ही आएगा, ठीक है। कैसे? पी की वैल्यू होगी ट्रू और नॉट पी की होगी फॉल्स, तो जितनी भी बार पी और नॉट पी का और करोगे ट्रू ही आएगा, ठीक है। चाहे पी की वैल्यू ट्रू हो चाहे पी की वैल्यू फॉल्स हो, पी इज अगर ट्रू है तो भी इसका इसका आंसर ट्रू आएगा, और पी अगर फॉल्स है तो भी इसका आंसर ट्रू आएगा। तो जिन स्टेटमेंट्स का आंसर हमेशा ट्रू आए उसे टोटोलॉजी कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में अगर सारे स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आए तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो अगर पी की वैल्यू चाहे ट्रू हो चाहे पी की वैल्यू फॉल्स हो, दोनों ही केसेस में ये स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। थर्ड इज कंटिजेंसी। कंटिजेंसी में क्या है कि नाइदर अ टोटोलॉजी, जिसमें सारे ट्रू भी नहीं होने चाहिए और सारे फॉल्स भी नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पी, अब पी ट्रू था, पी ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ टोटोलॉजी एंड नॉट नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है।
ओके, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब हम कैसे बताएंगे कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? हमेशा उनका ट्रूथ टेबल बनाओ, पी क्यू, फिर उसके सबसेट, जैसे कि हमें नॉट पी और क्यू का निकालना है, तो हम पहले नॉट पी का करेंगे, फिर नॉट पी और क्यू का करेंगे, फिर फाइनल जब ये बन जाएगा इसको कंपेयर करेंगे हमें जिसके साथ कंपेयर करना है, और दोनों अगर सेम आते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम बोलेंगे कि दीज टू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। सो नॉट पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू नॉट पी और नॉट क्यू, एंड नॉट पी और क्यू इज इक्वल्स टू नॉट पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस लॉज। ये लॉज भी आपको सबको पता है। अगर हम किसी के साथ भी एंड करेंगे ट्रू का, तो वी विल गेट पी इटसेल्फ, चाहे पी की वैल्यू ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अगर पी की ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगी, फॉल्स है तो फॉल्स मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम फॉल्स के साथ इसको और करेंगे तो हमेशा हमें ओरिजिनल पी ही मिलेगा, चाहे पी की वैल्यू ट्रू है चाहे फॉल्स। सिमिलरली डोमिनेशन, डोमिनेशन में ट्रू डोमिनेट करता है, इसमें फॉल्स डोमिनेट करेगा। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट। देन यू हैव निगेशन लॉ। ठीक है, निगेशन 2 टाइम्स करोगे तो ओरिजिनल आ जाएगा, चाहे वो ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। देन यू हैव निगेशन लॉज। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एब्सॉर्प्शन, ये सब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस। सो न्यू लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के लिए हम हमेशा सीरीज बनाएंगे और फिर उन सीरीज को कंपेयर, एक के बाद कंपेयर करेंगे। लेट्स सी, जैसे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर बताना है, तो सबसे पहले हम नॉट पी बनाएंगे, फिर नॉट पी और नॉट क्यू का बनाएंगे, फिर जो भी कुछ आया उसका बनाएंगे, फिर फाइनली आउटर स्टेटमेंट का। इस तरह से हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली प्रूव करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंस हैं कि नहीं, तो डायरेक्ट प्रूफ हम ऐसे करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज। जो प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी, उन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले कन्वर्ट किया यहाँ पे, ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू, यहाँ पे नॉट ए और बी, ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया बाय ट्रूथ टेबल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको ओपन अप किया, डी मॉर्गन लॉ लगाया, यहाँ पे भी डी मॉर्गन, फिर इसको फर्दर ओपन अप किया। फिर उसके बाद जब हम नॉट पी और पी का और करते हैं तो हमें ट्रू मिल जाता है। जब हम नॉट क्यू और क्यू का और करते हैं हमें ट्रू मिल जाता है। जब दो ट्रू का और करते हैं हमें ट्रू मिल जाता है। तो हमें सारे लॉज लिखने हैं, कौन कौन से लॉ के थ्रू ये हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव टू कम इन क्लास। ठीक है, यू हैव टू अटेंड क्लासेस ऑफलाइन मोड ओनली।